Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So we're talking about the data types yesterday, and we had seen the data types what we have, right? But the data types are, if you say the broader classification of data types, then the data types can be either primitive, okay, right? It could be trivial, or they're gonna be like objects. Okay, we have to understand them inside out, and we will do that using a lot of things. Now we have the number I talked about, we have a string data type, and when say talk number, it takes everything we have, okay, or we got like the boolean. They are all primitive data types, okay. And ES6 started your like the symbol or big int. These are all the new variables like symbol and big int. They're also primitives. And a trivial, we got the null, okay, and we got the undefined. Undefined is also the data type. And then we have the objects, and everything is an object. Later on we'll see whatever we have, they're all objects, okay. So if you have to, if we declare a variable, for example, if I go here, I say console, you can go here in the view, okay, developer, and then there is a JavaScript console, and in my case it is the option command and J. You can open up with the option command and J. In your case it will be I guess what will be control shift and J, perhaps in Windows control shift and J. You just see what is written there, the shortcut. So I have option control J. I can open up my this thing, and to clear the stuff I can have what, I can have, if I want to clear this thing, I can have the control L to clear it, control L to clear the stuff, okay. Okay, now if I'm taking it all the things, control L to clear it. Now if I want to write some variable, for example, there are a couple of ways of writing the variable. One is to say the var, and one is to say the let. So what is the difference between var and let? We will talk about it in a while, okay. Okay, we have the, if I don't write anything, I say for example a equals to, for example, 20, okay. Now this thing is also the var. You write it or you don't write it, it is a var. It is a var, okay. Now what is the difference between var and why we do that? Let's say you say like var a equals to, for example, 45. Now this is how you write, or you write a is equal to 20, it is one and the same thing. And for example, if I say like I have some if I say like, for example, a is equal to 89. Now you got the a to 99. If I say type of a, now it's telling me it's a number, type of, to see what is the data type of this variable. Okay, I created the a variable, it's 89. Now it is, I told you that JavaScript is a dynamically typed language, that we don't have to write anything, on the left of it to say this, and like in the C++ or any Java language, we have to say int a, right, to tell us that a is of type integer. But here you can have simply the a is equal to, then you could say var a only, and don't assign it, you don't need to assign it, okay. And but if you assign it at what you have assigned it, say for example I'm assigning it 24.5, now it is again a number. If I'm assigning a minus 42, it is again a number, because this number data type can take the negative numbers, can take the positive numbers, can take the floating point numbers, the real numbers, like which have the decimal point inside. It can take all those things. So yeah, you don't have to worry about everything. The number data type is which caters to all these guys, right? So if I say, for example, here b equals to 45.66, okay, and you say type of
damn, I should say type of. Okay, I have to press tab actually. Type of what? This B, and it's telling me it's a number. So even though it was a floating point number, you say C equals to negative 66. Okay, and you want to say type of C, it's again a number. So you have the floating point numbers, you have the negative numbers, you have positive numbers, they're all numbers. And maybe you say like say for example I say num equals to, then I say 0.9999999, and I give it a go. It is telling me 0.99, but if I do same, I'm pressing arrow, up arrow, top arrow to give to repeat the command like we do in a command prompt. And if I give lots of nines, okay, I'm giving lots of nines here. Now at some point it converts it to the 1. It's converting it to the 1. It is rounding off. Okay, it can do that also. And your this is the JavaScript. This console is the full-fledged, like a calculator. It can work on like a calculator. It can do anything you like. Okay. Now I was talking about, say for example, I am saying here name equals to. Now I want to get something from the user. If I want to, like last time I said alert, like this alert. Okay, alert, I'm saying hello. Now it's giving me the alert box, but I want to get the input. If I say I want to clean this, what should I say? Control L. Even command K will also work to clear the things. Okay, if I say command K, it will also work. In Windows it is control L to clear this this window, right? थर्ड पार्टी कुकीज ही ब्लॉक कर रहा है, कुछ इसने तंग किया मुझे. Anyways, now here I am saying that I want what? I want to get the input from the user. That user give me something. I say name equals to, then I will have what's called a prompt. Like we have alert, we have prompt also. PROMPT, not N. That's just, it was not. Then you can press tab to so that you can write. Okay, prompt. Then I can give the message. What's your name, for example? What is your name? Okay, and I close it. Now what will it do is it will give me the text box. It will give me the prompt where this question will come. What is your name? What was here? What you wrote here? I should have put the question mark on the back. And you can write here, say my name is Junaid. Now this Junaid will go into the name. Now if I say the type of, if I say tab type of name, it got to be string. It got to be what? String. So whatever you are, the prompt returns, it's the string, right? Maybe you say what's your first name, what's your last name. Okay, you can do that, and it will be saved. Say for example, if I say there are some guys who are waiting, admit. इससे पहले भी एक था, मैंने इसको ऐड ही नहीं किया शायद. Anyways, if I say what, इसने मैसेज तो कोई नहीं कर रहा था ना, इसीलिए. Okay. Like I say second name, or I say last name, and the way I wrote it is called a camel casing. The variables we write is, we don't usually put, we could have put up, we could have put up the, the space between, space we can't put, but we could have put an underscore between and say last name, or I could say last hyphen name. But the better way of writing is we say the LAST, start with the small alphabet. Okay, start with the small letter. Then when the next word comes up, put the first letter as a capital. And this thing is called as camel casing. Camel casing. इसका ये थोड़ा font बड़ा है पेन का. यहाँ पे जो आप देख रहे हो मैंने L small लिखा, फिर N capital लिखा, ठीक है ना? So it's called as a camel casing. Variable name हम लिखते हैं using the camel casing. ठीक है? If I say last name equals to, then I want to have a prompt here. Equals to prompt, put tab, and write enter your second name, enter your last name, or what is your last name or something, what do you want to say. And now there is some problem. What I have done wrong, double quotes missing here. And remember one thing, we can have double quotes in a string and as well as the single quotes, it doesn't matter. Okay,
Now it's telling what's your last name. I say last name is, for example, Iqbal or whatever you like to call it. Now these are stored in the variables. Like name, if I say any times what is the name, okay, it's telling me it's Junaid. If I say last name, and it's telling me it's Iqbal. So they are stored in this. Now if I have, for example, I want to have a sum of two numbers. I say num1 equals to, I use the prompt, okay, and in the prompt I am saying enter first number, enter first number, right? Okay, and I say shift enter, num2 is equal to prompt, prompt prompt, enter second number, ent, or enter second number. Now it's going to enter the first number. I'm saying the first number is 12, okay, and the second number is 10, okay. Now I want to add them together. Okay, num1 and num2. If I say num1, what is num1? It is telling me it's 12. If I say what is num2, it is 10, proper way. But if you see here with the 12 and 10, I will tell you in a moment what I'm trying to tell you is, I'm saying sum equals to, then I'm saying I want to say that this is num1 plus num2, okay, and bingo, what's happening here? What should be the answer of sum? Our answer of sum should be 22, right? But it's telling me 2010. It's telling me 1210. Why so? Because the prompt returns me the string. It returns me a string. That is why there is a single quotes over the 10. So whatever the num1, if I say the type of num1, type of, and I say num1, it is string, not integer or the number, right? You getting my point? So the num1 is the string, num2 is also a string. When you are plus doing two strings, this plus operator concatenates. It's not the addition operator. It is the concatenation operator. And when you have the one variable here and you are saying plus second variable, if these variables are integers or floating point numbers or numbers, in a short, if they are numbers, then this plus is the addition. But if they are strings, if they are what? Like I'm saying Junaid here and I'm saying Iqbal here, okay? And they are strings, either in double quote or in single quote, it doesn't matter. Now this plus will not add the strings, it will concatenate. When you add them together using plus, it will become Junaid Iqbal, like this. Similarly, we had the 10, but this 10 was in the quotes, it was a string. This second number was 12, 12 was in quotes, it is again a string. When you plus them together, this plus will not be the addition, it will concatenate. It will make it 10 and this 12 combined together, okay? In fact, it was 12 10, not 10 12, right? You getting my point, everybody? Yes, sir. So what shall we do then to get the answer? Let me clear this first. Command K or Control L. What should we do? Because we want the sum, right? So I could say here sum equals to, then I will typecast num1. I will tell it explicitly that make this num1 as a number. Make this num1 as number, then plus it with, again I'm saying number, but it should be, n should be capital, right? Number, typecast with the number and call it num2, okay? Now what I am saying is that I am telling the JavaScript renderer, that interpreter, that this num1 convert this into the number first, and again num2 convert this to number. Now when whatever is the output of it will be the number. Now whatever will be the output of this thing here, it will be a number. So output of this guy will be a number, right? And output of this guy will also be a number. So when you add the number together, right, when you add the number together, they will give the answer as a number, right? So this will become a number now. So this was 10 or 12, number was 12 in the code, so it was a string, and 10 in the string, but we converted it into the 12 number. Then we converted it into 10 number temporarily right now for this moment, and then
this plus is now acting on the number, two numbers, so it will be addition. So it will be 12 plus 10, that is 22. That will be now gone into the sum. So if we say now what is the sum here, if I want to print the sum, even though if I say here enter, like here I'm saying enter, there is one error here, that this should be the number, should be capital, right? So it's the answer is 22. Getting the point what I'm saying? Hanji. Yes, sir. Okay. Yeah, be with me. Now you can declare these variables using the var, which was the old style. When the JavaScript when started, they have the var. Okay, they didn't have the let. In 2015, they introduced the let also. So you are declaring variable with a var. By default, if you don't write anything, like I was saying here, like a is equal to, say for example 20 or something, or b equals to, I'm saying Junaid as a string, and I'm telling string can be in a single quote or a double quote, and there should be a terminator on a back. Every statement of the JavaScript ends with the terminator. You should do that. It's a good practice. Sometimes it works without the terminator, but we should put the terminator on a back, the semicolon. Now, what is the difference between the var and the let? We need to understand this. Now, this var is global. Firstly, the var is global. It is having global scope, okay, as well as local scope. It is having global scope as well as local scope. This let is having a local scope. The first thing is that अगर लोकल स्कोप में आपने कोई वेरिएबल बनाया लेट से, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो काम, उसको ग्लोबल स्कोप में आप इसको एक्सेस करना चाहते हो, इट वोंट वर्क, राइट? कीप दैट थिंग इन माइंड. सेकेंड थिंग इज दैट ये जो ग्लोबल स्कोप में है, तो आप इसको अगर कहीं पर भी आपने इसको किया, किसी ब्लॉक के अंदर किया वेरिएबल डिक्लेयर, और उसके ब्लॉक के बाहर भी अवेलेबल होगा अगर आपने वैर से किया है, ठीक है ना? तो अगर आपने वैर से कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, आप किसी ब्लॉक के अंदर हो, या तो ये सीधे ही ब्लॉक है या ये फंक्शन है फॉर एग्जांपल, और इसमें वेरिएबल एक है, और वैर से आपने वेरिएबल खड़ा किया हुआ है, से फॉर एग्जांपल 20. नाउ आप इसको, इस ए को एक्सेस कर रहे हो आउटसाइड द ब्लॉक समवेयर. It can be accessed because var a can be accessed locally in the block as well as globally, that is outside the block. लेकिन let से जो आप काम करोगे, if you do the let, okay, अगर आपने यही वेरिएबल let से किया होगा, ठीक है, ये आपको ब्लॉक के बाहर, क्योंकि ये लोकल स्कोप हो गया इसका, ठीक है ना, इसके बाहर ये एक्सेस नहीं होगा. अगर मैं यहाँ पे ए एक्सेस करना चाहूँगा, ये बोलेगा ए कौन है, आपने तो डिक्लेयर ही नहीं किया ए को, ए तो कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है? बात समझ आ रही है? Yes. Okay. First, let us try to see this thing, what I am saying, using the let and this thing. Okay. I will go to the sources here firstly. Okay. And I got a snippet already. We have put up the snippet yesterday here. Okay. Now I am trying to create here, and we could use the VS Code actually to work it out. But for a while I'm using the Terminator, but we can use the VS Code. अच्छा, अब मैं क्या करूँगा काम, एक वेरिएबल बनाऊंगा ए, वैर से करूँगा, वैर ए इक्वल्स टू ट्रू. व्हेन आई से ट्रू, इट मीन्स इट्स अ बूलियन, राइट? वैर ए इज इक्वल ट्रू मीन्स इट्स अ बूलियन वेरिएबल. ए इज अ बूलियन वेरिएबल विच कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स. जो पहले आपका C++ था, वहाँ हम सीधे 0 एज ए फॉल्स करते थे और 1 एज ए ट्रू. लेकिन यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना है ऐसे, ये ट्रू फॉल्स कहाँ लगता है हमें ज़रूरत, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना है कि ए में फॉर एग्जाम्पल 10 है और बी में फॉर एग्जाम्पल 20 है, आई एम सेइंग इफ ए इज लेस देन बी, या तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो सकती है या फॉल्स हो सकती है. टू इवैल्यूएट टू ट्रू और फॉल्स, राइट? क्योंकि या तो ए छोटा होगा या तो बड़ा होगा, ठीक है ना? तो या तो ये फॉल्स है या तो ट्रू है. इस सूरत में ये ट्रू है. अगर ये यहाँ पर 70 होता तो अब ये फॉल्स, ये इवैल्यूएट टू फॉल्स होता. इस चीज़ को हम बूलियन बोलते हैं, और वो हमने सीधे ट्रू और फॉल्स कर दिया है एज ए डेटा टाइप उनका, ठीक है ना? यानी कि अगर मैं कंसोल में जाके मैं पूछूंगा कि इसको कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस वैर ए ऑफ दिस ए, इट विल कम टू बी द बूलियन. नाउ व्हाटएवर इट इज. अब मैं क्या कर रहा हूँ काम, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ. मैं फंक्शन बाद में हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा हम फंक्शन पढ़ भी चुके हैं. मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ये लिख ही नहीं रहा.
मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ FUNCTION फंक्शन, उसका नाम मैं फन रख रहा हूँ, ठीक है ना। फंक्शन बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, हम सीधे ब्लॉक भी रख सकते थे। फिलहाल मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। इस फंक्शन में मैं कह रहा हूँ इफ़ a इक्वल्स टू ट्रू, यहाँ पे मैंने डबल इक्वल लगाया और ट्रिपल इक्वल भी होता है। पहले डबल इक्वल की बात करेंगे, फिर मैं जब असाइनमेंट ऑपरेटर आता हूँ उसमें बताऊँगा मैं। डबल इक्वल का मतलब है कंपैरिजन। अगर मैं कहूँगा a इक्वल्स टू ट्रू, उसका मतलब है ट्रू डालो a में, ठीक है। असाइन ट्रू टू द a, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। बट इफ आई से a डबल इक्वल्स टू ट्रू, उसका मतलब है कि कंपेयर करो दोनों को, क्या a ट्रू के बराबर है या नहीं। फ़र्ज़ कीजिए a में फॉल्स था यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या a ट्रू के बराबर है, नहीं, तो ये स्टेटमेंट इवैल्यूएट होगी टू फॉल्स। अगर a ट्रू के बराबर है तो ये स्टेटमेंट इवैल्यूएट होगी टू ट्रू। सो इट्स अ कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है ना। और जो ट्रिपल इक्वल टू होता है वो क्या करता है काम, वो तो कंपेयर भी करता है और डेटा टाइप भी देखता है, वो डेटा टाइप भी देखता है, ठीक है ना। वो बाद में देखूंगा, मैं बताऊंगा, मैं फिलहाल इसके ऊपर काम करेंगे। मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया a ट्रू रखा उसको, और फिर मैंने फंक्शन बनाई, और मैं कह रहा हूँ इफ़ a इक्वल्स टू ट्रू, और उसके बाद मैं एक, अगर ये ट्रू है, फिलहाल तो है ट्रू क्योंकि a तो ट्रू रखा हमने, तो ये तो ट्रू है, ये तो इवेलुएट होगा टू ट्रू एंड ये घुसेगा इस इफ़ में, है ना, सीधी सी बात है। इसको मोटा कैसे करें, कंट्रोल प्लस प्लस से, ताकि आपको दिखे मैं क्या कर रहा हूँ, ओके प्रॉपरली। अच्छा, मैं कह रहा हूँ इफ़ a इक्वल्स टू ट्रू, अगर आपका a ट्रू है तो मैं एक वेरिएबल खड़ा करता हूँ यूजिंग द वैर। आई एम सेइंग वैर b इक्वल्स टू 99 फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसे कहा, ठीक है, ओके। अब मैं ये जो इफ़ ब्लॉक है इसके बाहर निकलता हूँ यहाँ पे, और मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, आई एम सेइंग कंसोल डॉट लॉग, और मैं लगा रहा हूँ इसमें y, ठीक है, ठीक हो गया। कंसोल डॉट लॉग में y लगा रहा हूँ यहाँ पे, कि मैं कह रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग मतलब होता है कि कंसोल में आप प्रिंट करो, ठीक है। इस y नहीं b को प्रिंट करो आप, कंसोल डॉट लॉग b, तो करो इसको, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या ये चलेगा, हाँ जी, यस सर। जी सर। पहले जब आप फंक्शन बनाते हो उस फंक्शन को कहीं पे कॉल भी करनी होती है ना। सो यू हैव टू कॉल इट, विदाउट कॉलिंग इट वोंट वर्क। अब मैंने फन को कॉल किया यहाँ पे, सो इट विल जंप टू द लाइन नंबर 2 फ्रॉम दिस लाइन नंबर दिस व्हाटएवर दैट इज लाइन नंबर 10। जब फन को कॉल होगी यहाँ से जंप मारेगा टू लाइन नंबर 2 जहाँ पे फंक्शन डिफाइन है, वहाँ पे देखेगा क्या a ट्रू है, हाँ है, तो ये घुसेगा इसके अंदर, तो ये वेरिएबल b खड़ा करेगा, उसमें 99 डालेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद जब ये फंक्शन के बाहर निकलेगा, ये इसका ब्लॉक है यहाँ पे ख़त्म है, ये जब इससे बाहर निकलेगा तो ये कंसोल डॉट लॉग यानी कंसोल के अंदर जो यहाँ पे कंसोल है इसके अंदर यहाँ पे ये काम क्या करेगा, ये b का वैल्यू प्रिंट करेगा। देखते हैं, थैंक यू, ठीक हो गया। यानी कि इफ़ आई गिव इट ए गो नाउ, now it is telling me 99 here, as you could see here, okay। और we could have said console.log value of b, डबल कोट्स में लिखेंगे या सिंगल कोट्स में लिखेंगे, value of b equals to डबल कोट क्लोज concatenate it with the b, ठीक है। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, तो लेट्स गिव इट अ गो। नाउ इट्स सेइंग value of b is equal 99। why, how is it possible that whatever you have declared in a inside a function, क्योंकि आपने c में देखा होगा कि भाई साहब आपके पास अगर फंक्शन के अंदर कोई लोकल वेरिएबल होते हैं, दे कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स, यानी कि आपके फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करोगे, दे आर गिवन बर्थ एट द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन, एंड व्हेन दिस ब्रेस कम्स अप, व्हेन द फंक्शन फिनिशेस, दे आर ऑल किल्ड। लेकिन यहाँ पे जो वैर है इसका स्कोप लोकल भी है और ग्लोबल भी है, इसका स्कोप लोकल भी है और ग्लोबल भी है। तो अगर मैंने कहा वैर का स्कोप ग्लोबल है, सो दे विल बी स्टिल अलाइव, दे वोंट बी किल्ड व्हेन दिस फंक्शन फिनिशेस हियर, ठीक हो गया, कि आपकी फंक्शन यहाँ पे फिनिश हो गई, ठीक है ना, तो उसके बाद ये मारा नहीं जाएगा ये वेरिएबल बी, ठीक, ये रहेगा। तो इसीलिए तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है।
लेकिन अगर मैंने यही चीज़ की होती, फ़र्ज़ कीजिए किससे, अगर मैंने यही चीज़ की होती लेट से, Yes, sir. अगर मैंने यही चीज़ की होती लेट से, LET, लेट, ठीक है ना। अब लेट जो है उसका स्कोप लोकल है, इट इज़ लाइक यूर सी वेरिएबल्स नाउ, कि अगर आपका सी वेरिएबल क्या बोलते हैं कि आपको जो है आपने ये वेरिएबल बनाया किसके अंदर बनाया, इस इफ़ के अंदर बनाया है ना, इस इफ़ के अंदर बनाया, जहाँ ये ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक शुरू है, तो इसका जन्म दिया जाएगा एंड इट विल बी किल्ड एट द लाइन नंबर 6, बी वोंट बी अवेलेबल। सो यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो काम, आप इसको रन कर रहे हो, ठीक है, ये तो फिर भी बोल रहे हैं कुछ, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। लेट से मैंने किया वेरिएबल बी खड़ा, और बी हम दे रहे हैं ये, पहले इसको कमांड के करेंगे, हम क्लियर करेंगे, फिर देखेंगे क्या बोल रहे हैं। इसने वेरिएबल बी दिया, मेरे ख्याल है बी हमने कहीं पे डिक्लेयर किया होगा इससे पहले, इसके पास ऑलरेडी था शायद ये बी, ठीक है ना। नहीं, मुझे दिखा रहा है बी नॉट डिफाइंड। देखो ये दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे 45.66 है ना, ये वेरिएबल ऑलरेडी हमने डिक्लेयर किया होगा ना अभी, ऐसा ना करा वही कत पे ABCD वेरिएबल बनाने में वारिया एम सु वेरिएबल दिते में तो फिर कैसे ना, जो ये बी Yes. वेरिएबल अभी हमने किया ना ए बी, अभी ये डिक्लेयर है इसके पास है ना अभी वो, क्या मैं कंसोल बंद करूँगा, इसको क्लियर करूँगा, फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रखूँगा बी नहीं रखूँगा, मैं रखूँगा वाई, वाई अभी तक मैंने किया नहीं डिक्लेयर, वेरिएबल ऑफ वाई, शायद वहाँ 45.66 को ना एम्प्रो में फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल डिक्लेयर बी सुई दिवा, ठीक है, उसने ये बी दिवा क्या। अच्छा, वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई। अब अगर मैं इसको करूँगा, अब ये बोलेगा कि भाई साहब क्या कर रहे हो आप, अनकॉट है रेफरेंस, वाई इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि जो लेट है, लेट से जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो उसका स्कोप क्या होता है, हाँ जी, लोकल। लोकल, उसका स्कोप होता है लोकल। यू कैन नॉट, यहाँ पे भी क्रॉस दिखा रहा है कि भाई अनकॉट रेफरेंस वाई इज़ नॉट डिफाइंड, आप इसको डिफाइन करो। अगर मैं अब यही चीज़ करता यहाँ पे लोकल ब्लॉक के अंदर, तो इसको कोई इशू हो जाता नहीं, ये प्रॉपरली करता, क्योंकि अब ये तो ब्लॉक के अंदर ही है, अब ब्लॉक के अंदर तो इसका स्कोप है वाई का, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ जी, Yes. Yes, sir. जी सर। है ना ठीक। तो ये फंक्शन भी, हमें फंक्शन भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम फंक्शन काटेंगे भी यहाँ पर, लेट अस क्लियर द फंक्शन। आई एम क्रिएटिंग ए वेरिएबल हियर, फॉर एग्जाम्पल आई एम क्रिएटिंग ए ब्लॉक हियर, एनी ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब होता है जो ब्रेसेस के दरमियान हो। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल किया वैर से, वैर मैं लिखूँगा w इज इक्वल टू, से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जुनैद व्हाटएवर, ठीक है ना, और मैं बाहर इस ब्लॉक के बाहर कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं अलर्ट भी कर सकता हूँ, कोई मसला ही नहीं है, कंसोल डॉट लॉग मैं कंसोल में कर रहा हूँ दिस w, हाँ, आई एम सेइंग वैल्यू ऑफ w इज इक्वल टू, और कनकैटनेट करें say w, okay, now it won't have any issue, it will give it the value of w is Junaid is coming up here as you could see, आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल है। तो अगर मैं यही चीज़ लेट से करता, यही चीज़ किससे करता मैं, लेट से, कमांड s, सेव इट, whatever, now give it a go, command k, okay, let me give it a different variable now s, क्योंकि ये सेव रखता है ना वो, उसमें मैं आई एम सेइंग s इज इक्वल टू s। अब मैंने लेट से किया ये s, और जब मैं कहूँगा ये कहेगा भाई s इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये जो s आपने किया है ये इस ब्लॉक के अंदर किया है। अब आप जब लोकल स्कोप होता है लेट से, यानी कि इसके बाहर आप जब करोगे तो ये आपको ब्लॉक के बाहर नहीं पहचाना जाएगा, बात समझ आई। तो यानी कि अगर आपको कोई वेरिएबल है अंदर और आप करना चाहते हो उसको बाहर से एक्सेस, तो यू हैव टू यूज़ हियर व्हाट, द वैर, नॉट द लेट। ठीक हो गया, समझ में आ गई। दूसरी बात कि वैर कैन बी रीडिफाइंड, यू कैन रीडिफाइन द वैर, ठीक है ना।
आपके पास वेरिएबल एक वैर है, आप इसको रीडिक्लेयर कर सकते हो, नॉट रीडिफाइन, रीडिक्लेयर भी कर सकते हो। यानी कि आपके पास वैर ए है फॉर एग्जांपल ट्रू, एक तो क्या कि मैं अब ए में बनाऊंगा, मैं ए को फॉल्स बनाऊंगा, इट डजेंट मैटर, ये वेरिएबल है तो हम कर सकते हैं। this A is like my cup in my hand. You can put up in a tea in it, you can put milk in it, you can put different value in it because it's a variable. Variable का मतलब ये होता है कि it varies. You can take different stuff in it. ओके अभी मैंने ट्रू था, फॉल्स कर दिया, वो मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँगा वैर ए इज इक्वल फॉल्स, यानी कि क्या हो गया कि मैं अपना कोड लिख रहा था, ठीक है, और मैंने बहुत सारा कोड लिखा और यहाँ पे कोई वेरिएबल मैंने खड़ा किया था और मैं नीचे आ रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। एक तो कि जानबूझ के करना, दूसरा हो गया कि मुझे याद ही नहीं था कि मैंने ए कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया था। अब मैं यहाँ पे वैर से ही डिक्लेयर कर रहा हूँ, फिर से कोई ए वेरिएबल फिर से कर रहा हूँ मैं, जबकि मैंने ए डिक्लेयर किया हुआ है, तो मुझे कोई एरर नहीं दिखाएगा अगर ये वैर है, बिकॉज वैर कैन बी री डिक्लेयर्ड, ठीक है ना। लेकिन अगर लेट होता तो वो उसको डिक्लेयर करने नहीं देता, तो लेट से वो चीज़ नहीं चलती है, दोबारा नहीं कर सकते। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास एक अगर वैर नहीं कि मैंने एक ए कहा था, मेरे पास ए जो वेरिएबल है वो फॉल्स है, ट्रू है, यानी कि वो बूलियन टाइप है। अब अगर मैं कहूँगा ए इज़ इक्वल टू से 89.67, ठीक है ना, ओके, एंड लेट मी क्लियर दिस, आई से टाइप ऑफ हियर, टाइप ऑफ, ओके, चलो हम इसमें कंसोल में ही करेंगे। आई एम सेइंग a is equal to true for example, whatever. Now if I say type of a, it is boolean definitely, लेकिन अब मैं a को लिख रहा हूँ 89, अब मैं 89 डाल रहा हूँ a में, ठीक है, देखो इसने टर्मिनेटर के बगैर भी काम किया, बट इज नॉट बेस्ट प्रैक्टिस। Now if I say type of a, now it has changed the data type, इसने इस ए का डेटा टाइप ही चेंज किया। पहले ये ए जो था ये बूलियन था, अब ये नंबर बन गया। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यानी कि Yes, sir. इट चेंजेस द डेटा टाइप ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये डायनेमिकली टाइप्ड है। ऑन द बेस वी कैन डू दैट। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल ए है और मैंने कहीं नीचे फिर से रीडिक्लेयर किया है, मैंने वैर फिर लगाया ना, अब मैं इसमें कुछ डाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल फॉल्स वगैरह, सो या मैं इसमें कोई और चीज़ लगा रहा हूँ 45 या जो भी है, और मुझे याद नहीं था कि ए में मैंने ए डिक्लेयर किया था नहीं किया था, ये करने देगा। इफ़ आई से हियर फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू, अगर मैं सिंगल कोड करूँ, आपको क्या लग रहा है सिंगल कोड चलेगा? कि मैं डबल कोड नहीं लगाऊँ, मैं स्ट्रिंग के ऊपर सिंगल कोड लगाऊँ, वो चलेगा, कोई मसला ही नहीं है। और मैं कंकैटनेट करूँगा इसके साथ ए, सो व्हेन आई गिव इट ए गो, सो इट इज़ टेलिंग मी इट्स 45, नो प्रॉब्लम, वैल्यू ऑफ ए इज़ 45। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर मैंने यही चीज़ लेट से की होती, लेट ए इज इक्वल टू दिस, और मैं फिर लेट बोलता हूँ, ठीक है ना, आई एम टेलिंग अगेन द लेट, ओके, एंड नाउ आई एम गिविंग टू गो, सो इट्स टेलिंग मी ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड बाई, तू कर क्या रहा है, तो फिर से इसको डिक्लेयर कर रहा है, अभी मान नहीं रहा, ठीक है। सो दूसरी फ़र्क आपको पता चली यूजिंग द लेट एंड वेयर। अब पहली फ़र्क क्या थी कि जो वेयर आपका है वो ग्लोबल भी है लोकल भी है, लेकिन लेट आपका सिर्फ लोकल है, उसका स्कोप ग्लोबल नहीं है। अब दूसरा ये था कि आपको अगर आपका वेयर है, यू कैन रीडिक्लेयर इट, यू कैन रीडिक्लेयर इन सेम स्कोप वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। अगर डिफरेंट स्कोप है फिर तो कोई परेशानी नहीं है, अगर डिफरेंट स्कोप है फिर कोई परेशानी नहीं है। यानी कि आपने यहाँ पे एक वेरिएबल ट्रू किया, ठीक है ना, अब आप क्या कर रहे हो काम, आपने एक फंक्शन लिखी है जिसका अपना ब्लॉक है, उसके अंदर एक ए आप वेरिएबल खड़ा कर रहे हो, तो ये कोई इशू नहीं है ना। इफ़ आई गिव इट अ गो, ये कहेगा ट्रू है, क्योंकि ये लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 6 दे आर ऑन अ सेम स्कोप, लेकिन ये जो वाला बंदा है इसका स्कोप ये ब्लॉक है। अब लेट हमें कोई इशू नहीं कर रहा, क्योंकि ये ए वेरिएबल जो है उसका स्कोप जो है बाहर है, इसके जो दूसरा फंक्शन हमारे पास जो हमारी बाहर वाला इलाका है, लेकिन ये जो हमारा कमरा अंदर हमने खड़ा किया ब्लॉक,
इसमें इस ए का स्कोप है, तो यहाँ ये ए अलग है, वो ए अलग है, इसमें इसके साथ कोई दखल अंदाजी नहीं है, क्योंकि लेट जो आपका है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और ब्लॉक बनाता हूँ, मैं एक और ब्लॉक बनाऊंगा यहाँ से, ठीक है, और मैं कहूँगा इसमें लेट ए इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैं डालूंगा कुछ 34 पॉइंट वट, ये तीनों चीज़ें चलेंगी, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये जो है ब्लॉक के बाहर जो है ए, ये अलग है, ये वाला ए अलग है, ये वाला ए अलग है, इस ए में ये जो ये वाला ए है, इसका स्कोप सिर्फ ये ब्लॉक है, इसके बाहर तो ये चलेगा ही नहीं, यानी कि अगर मुझे ये प्रिंट करना है या इसके साथ कुछ करना है, दैट हैज़ टू बी विद इन दिस ब्लॉक ओनली, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये कमांड सी एंड कमांड वी करूँगा यहाँ पे, सो आई एम प्रिंटिंग इट हियर, सो ये ए इस वक्त पढ़ा जाएगा 34.56, तो अगर मैं ये करूँगा तो पहले ये देगा वैल्यू इसका ए का 34. दिस चल क्यों नहीं रहा है, ये दे रहा है वो असल में ए 34.456 आया ये वाला, उसके बाद इसने ये ए दिया, लेकिन ये कौन सा ए देगा, वो ऊपर वाला ट्रू, ठीक है ना, लेकिन ये जो है डिफरेंट स्कोप में मैंने ए को री डिक्लेयर किया, वो लेट से करें आप वैर से करें, डजंट मैटर, लेकिन अगर सेम स्कोप में, जैसे ये इसका स्कोप जो है वो लाइन नंबर 6 टू लाइन नंबर 9 है, जहाँ तक इसकी दीवार है, इसमें मैं फिर से डिक्लेयर कर रहा हूँ लेट से, लेट ए इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल वट एवर जो भी आप देना चाहते हो, सो दिस इज एन एरर, इट वोंट लेट यू टू री डिक्लेयर, ये आपको बता रहा है, हमें क्रॉस आ रहा है सीधे कि भाई साहब आप इसको री डिक्लेयर कर रहे हो, ये नहीं कर सकते आप, सिंटेक्स एरर है, हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड, क्योंकि आप सेम स्कोप में लेट से नहीं करते कर सकते, अगर हमने वैर से किया होता ना, इसका कोई इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना, अगर मैंने फिर से वैर से किया, ठीक है, ये फिर दिखा रहा है कुछ मसला है, इसको क्या मसला है, अब क्या बता रहा है, एक मिनट, अनकॉन्स्टेंट ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, हमने तो वैर से किया, तो इसको क्या परेशान, अच्छा यहाँ है ना मगर लेट, हाँ, क्योंकि वैर ए का जो है ना उसका ग्लोबल स्कोप होता है, तो ये जो ए वाला है ये हर ब्लॉक में आपको एक्सेस होगा, तो यहाँ पे जो आपका ए है ये अब इसके साथ कंफ्यूजन कर रहा है कि भाई ये लेट इसको भी करने नहीं दे रहा, क्योंकि लेट ए आप जब आपने कहा, अभी वैर से भी ए को रीडिक्लेयर नहीं करने दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपने लेट किया हुआ है, तो अगर अब यहाँ पे वैर करोगे, ठीक है, तो मेरा ख्याल है अब इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी प्रॉब्लम है, क्यों, दूसरा लेट है, क्योंकि लेट आपका छोड़ेगा नहीं ना, ठीक है, अब इसको क्या मसला है, कहीं और लेट है हमने किया है, ये क्या बता रहा है एरर, एक सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस क्लटर, फिलहाल कमांड के ओके, अब मैंने क्या किया, वैर ए इज इक्वल ट्रू किया, पहले कमांड कंट्रोल एस, हमने इसमें वी एस कोड में करना था, ये कमांड एस, ओके, इसको कमांड के करते हैं, हाँ, अब बताओ, मैंने वेरिएबल ए किया ट्रू, ठीक है, मैंने इसमें इसको रीडिक्लेयर किया, हम कर सकते हैं, अब फिर से रीडिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं वेरीफाई दिस, तो ये बता रहा है कि ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसने क्या है, ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, अब मैं इसको रीडिक्लेयर कर रहा था, तो फिर ये क्यों बता रहा है मुझे, एक मिनट, इसको अगर बंद करेंगे हम, फिर से इसका एरर दिखा रहा है, आपको अपने वी एस कोड में किया, यहीं भी किया, ये किसका क्रॉस कर दिया, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, मैं रेपलेट में करता हूँ, रेपलेट, यहाँ पे फिर से क्रॉस दिखा रहा है ना ऊपर से कुछ, not getting why is it doing this thing, एक मिनट इसको काट ही देते हैं सारा, ठीक है, मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ, वैर ए इक्वल्स टू 99 फॉर एग्जाम्पल, ओके, नहीं इसमें परेशानी पता क्या है, इसमें पता क्या परेशानी आ रही है,
क्योंकि देखिए परेशानी ये है इसमें, मैं बताऊँगा परेशानी क्या आ रहा है। अगर मैं ए कहूँगा यहाँ पे ए चल रहा है ना पीछे से, इसने लेट किया हुआ है ना, वो छोड़ नहीं रहा इसको। ये जो कंसोल आपका है ना, जो अभी तक हमने वेरिएबल्स किए ना, वो है ना सारे इसके पास मेमोरी में। यू गेटिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखो ए जो मैंने किया वो दे रहा है ना ट्रू, ये कहाँ से लाया? अभी तो हमारे स्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, और ये लेट से हमने किया हुआ है। इसीलिए ये कह रहा है कि भाई साहब बुतराव नहीं आला, अगर आप तो करा छू आप वैर ए कहोगे इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 56, ये तो अकेला है ना, तो ये इसमें भी एरर दिखाएगा। अब क्यों? यू गेटिंग व्हाई इज इट शोइंग द एरर? Yes. Yes, sir. Yes. अब तो अकेला है ना बेचारा, अब क्यों किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है? ये जो कंसोल है ना, इसके अंदर जो वेरिएबल्स अभी तक किए ना, वो सारे हैं ना इसके अंदर। बात समझ आ रही है? Yes, sir. हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, नया फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे या कहीं पर बनाएंगे, चलो डॉक्यूमेंट में ही बनाएंगे, क्या मसला है। यहाँ न्यू फोल्डर बनाएंगे हम JS नाम का, ऑलरेडी है, व्हाटएवर, क्रिएट, ओपन। अब मुझे आप बताओ, ये भी एक चीज़ है कि हम कैसे जावा, हम कहेंगे index.html, ओके, ये मेरा index.html है। ओके, यहाँ पे मैं लिखूँगा h1 tag and I'm saying learning JavaScript, ओके। और यहाँ पे अपना एक जावास्क्रिप्ट बनाएंगे, script.js फाइल बनाएंगे, या तो हम यहाँ पे script.js बनाएंगे, या हम जो बॉडी टैग है वहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, ठीक है ना, और अपना जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा अलर्ट salam whatever, okay, now if I give it a go on the browser, it's telling me the salam is coming up, right? Okay, and फिर आ रहा है आपका learning JS and all that, okay। हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं स्क्रिप्ट टैग जो है हमारा बॉडी के ऊपर। क्यों हम लास्ट में क्यों लिखते हैं स्क्रिप्ट और स्टाइल अक्सर ऊपर लिखते हैं? क्योंकि स्क्रिप्ट जो होता है, जावास्क्रिप्ट जो होता है, वो HTML एलिमेंट्स के ऊपर लगता है। यानी कि आप कह रहे हो कि मैं नाक का जो है ना एक फंक्शन बनाऊंगा जुनैद सर की, कि वो नाक स्मेल करेगी, ये पहले नाक तो होनी चाहिए ना, तब जाके स्मेल होगी। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट तब काम होगा जब आपके एलिमेंट्स बने हैं, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट लगाते हैं एलिमेंट्स के ऊपर, इसलिए हम कहते हैं कि जब बॉडी ख़त्म होगी ना तब जाके स्क्रिप्ट लगाना, ताकि जब पहले HTML बने सारा, उसके बाद स्क्रिप्ट लगे। या तो यहाँ करेंगे आप, या तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे करेंगे आप, इस अलग फोल्डर में करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट में यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर लिंक करना पड़ेगा आपको यहाँ से। कैसे? हाँ जी, कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट लिंक? Script source. एग्जैक्टली, ठीक है। और वहाँ हम कहेंगे भाई साहब जो मेरा है ना script.js, वो लगाओ। तो फिर आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, कमांड X, फिर हम इसके अंदर जो भी करेंगे काम वो उधर लगेगा, है ना, कमांड सेव इट। सो ये काम कर रहा है, फिर भी कर रहा है ना काम, ओके। समझ में आ रही है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी, Yes, sir. ओके। अब अगर यहाँ पे हम सलाम नहीं करते, अब हम यही चीज़ करते हैं कि हम लिखा वैर a इक्वल्स टू से फॉर एग्जांपल 45। अब मैं कह रहा हूँ वैर, फिर से मैं a कह रहा हूँ इक्वल्स टू जुनैद। अब मैं इसको स्ट्रिंग बना रहा हूँ, एंड आई से console.log में हम करेंगे a को प्रिंट, ठीक है, वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू, और यहाँ पे इसको कंकैटनेट करेंगे a के साथ एंड गिव इट अ गो। नाउ यू कैन ओपन अप द ब्राउज़र, वेयर इज ब्राउज़र, दिस द ब्राउज़र, स्क्रिप्ट इंस्पेक्ट करें, कंसोल निकालें, और वैल्यू ऑफ a इक्वल जुनैद आ चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। बस में आई, तो इसने करने दिया। लेकिन अगर मैं ये लेट से करता कोई चीज़, ओके, नाउ आई गो हियर एंड इज टेलिंग मी कि भाई साहब a ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ठीक है ना। बस में जा रही है। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल इसके पास, जो पुराने वेरिएबल्स जो हमारे पास थे ना इसे कंसोल ने, अब अगर कंसोल बंद करेंगे हम इसको इसके वैल्यूज़ को रिफ्रेश भी कर सकते हैं ताकि ये करे काम।
तो फिर ये नया एज ए फ्रेश करेगा। लेकिन जब जो भी हमने काम किया उसमें सेव था ना, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो आपके स्क्रिप्ट में है वही चलेगा। ओके, आपने उससे पहले क्या लिखा वो सेव नहीं है कहीं पे। बात समझ आई? तो हमें बता रहा है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। अच्छा, तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपके पास जो है यहाँ पे कि अगर मैं करूँ काम ऐसे, मैं इसको काटूंगा यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट के लिए आपको कॉपी रखनी चाहिए साथ में, ताकि आप लिखो मेरे साथ। जब मैं कोई काम करता हूँ आप लिखो, ठीक है ना। मेक ए कॉपी आउट ऑफ इट, ऑफ दीज थिंग्स, ताकि आपको नोट्स प्रॉपर मिले, ठीक है ना। जब भी मैं कोई काम लिखता हूँ यहाँ पे आप लिखें इसको, या तो आप साथ साथ करें या लिखें, राइट इट। अदरवाइज़ आप इसमें फॉलो नहीं कर पाओगे ना, फिर आप भूल जाओगे। ये इसमें कुछ नहीं याद रहेगा आपको। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए मैंने क्या किया काम यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है ना। और अगर मैं इतना ही करूँगा तो ये बताएगा कि ए क्या है भाई, ए इज़ नॉट डिफाइंड, ए तो है ही नहीं कोई चीज़, क्या कर रहे हो। अगर मैं कहा वैर ए इक्वल्स टू 45, ठीक हो गया। अब जब मैं कर रहा हूँ काम तो ये एरर नहीं दिखा रहा, लेकिन अनडिफाइंड दिखा रहा है, ठीक है ना। ये इसका अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो अगर मैं ऐसा भी करूँगा काम कि मैं इसको बंद करूँ पहले, और मैं लिखूँगा यहाँ पे वेरिएबल ए, मैंने कुछ डाला नहीं, मैंने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया खाली। सो इफ़ आई से हियर कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग ए को मैं चाहता हूँ मैं ए को करूँ प्रिंट। सो व्हाट विल हैपन, इट इज़ टेलिंग मी इट इज़ अनडिफाइंड, ओके। या अगर मैं करूँगा कि भाई मुझे इसका टाइप ऑफ दे दो, टाइप ऑफ ए, ठीक है ना। मुझे ए का टाइप ऑफ देखो, टाइप ए का टाइप क्या है, इट इज़ अनडिफाइंड। डेटा टाइप इसका अनडिफाइंड है, ये याद रखना चाहिए कि जब आप कोई वेरिएबल प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, विदाउट गिविंग एनी वैल्यूज़, अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो और उसमें कोई वैल्यू है नहीं, तो क्योंकि हमारे पास डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, यानी कि जो इसके अंदर वैल्यू होगा, अगर इसके अंदर वैल्यू है स्ट्रिंग का, तो मैं कहूँगा भाई जो ए है वो स्ट्रिंग टाइप है। अगर इसमें वैल्यू होगा नंबर का तो इसको नंबर मिलेगा। अगर इसमें वैल्यू होगा ट्रू फॉल्स का तो ये बूलियन बनेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जब मैंने कुछ रखा ही नहीं इसमें, तो अब जावास्क्रिप्ट इसको क्या डेटा टाइप देगा, क्योंकि हम डेटा टाइप दे रहे हैं ऑन द बेस ऑफ व्हाट वी असाइन इट, राइट। मैंने कहा ये डायनेमिकली टाइप्ड है, जो आप असाइन कर रहे हो वो आपका डेटा टाइप है। जब मैं कुछ दे नहीं रहा तो ये मत करेगा गेस्ट वर्क क्या तरह पागा, तुम्हें समझ पाता। सो ये एक डेटा टाइप खुद बना रहा है, जो मैंने कहा प्रिमिटिव डेटा टाइप इसमें है, दैट इज कॉल्ड एज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इज ऑल्सो ए डेटा टाइप। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था यहाँ पे अनडिफाइंड, यहाँ पे देखो नंबर 4 पे मैंने कहा कि इट इज़ ऑल्सो द डेटा टाइप, द अनडिफाइंड डेटा टाइप जो है। यानी कि अगर कब कब करना है अनडिफाइंड, कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर तो करते हो लेकिन उसमें असाइन कुछ नहीं करते हो। क्योंकि हमें प्रॉब्लम यह है कि जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप देता है ऑन द बेस ऑफ व्हाट यू असाइन। जब आपने कुछ असाइन किया नहीं तो इसको इसके बाद चारा नहीं है। अब मसला यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्यों अनडिफाइंड दे रहा है, कि जब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं इसको बंद करूँगा, इनफैक्ट आई विल रिमूव दिस। आई एम सेइंग कंसोल डॉट लॉग ए, आई एम सेइंग कंसोल डॉट लॉग ए। अभी मैंने ए डिक्लेयर किया था, नहीं किया था। देखो अगर मैं यहाँ पे करूँगा, ये बंद करूँगा, तो ये सीधे बोलेगा कि ए क्या है भाई, ए तो बनाया नहीं आपने, ए इज़ नॉट डिफाइंड इट, ये एरर है। लेकिन जब मैं ये हटाऊँगा तो ये एरर नहीं कर रहा, तो ये क्या कर रहा है, ये अनडिफाइंड कह रहा है। सो कर क्या रहा है ये, कि जब आपका वैर होगा और आपने वेरिएबल लाइन नंबर 2 पे किया लेकिन प्रिंट पहले ही कर रहे हो, तो आपका जावास्क्रिप्ट रेंडरिंग इंजन क्या कर रहा है, वो इस ए को देख रहा है कि भाई आगे वैर ए हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल स्कोप ऑफ द वैर, इट क्रिएट्स दिस एज 2 स्टेटमेंट्स। दिस वन जो ना कंसोल डॉट लॉग ए, इसको एज अ 2 स्टेटमेंट बना रहा है। ये इसको पहले बनाया ऐसे बना रहा है, वैर ए विदाउट असाइनिंग एनीथिंग टू द ए, इट क्रिएट्स लाइक दिट। एंड फिर ये लाइन चल रही है कंसोल डॉट लॉग ए। अगर आपने कहीं पर वैर बनाया है ए का तब, ठीक है ना। तो अगर अब अगर हमारे पास ऐसा है कि वैर ए है और कंसोल डॉट लॉग ये है ए है, फिर क्योंकि वैर ए का मतलब है कि विदाउट असाइनिंग एनीथिंग, व्हाट विल बी, आई एम आस्किंग यू गाइज, इफ यू आर नॉट असाइनिंग एनीथिंग टू द ए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, डेटा टाइप ऑफ ए, Undefined. Undefined. अब आप जो कंसोल डॉट ए कर रहे हो
It is as good as writing like this. It is as good as you are writing like this. यार तू जाना नीचे. It is as good like this that you have written var a like this, then you have written console.log a. अब आप a में 45 डाल रहे हो. दूसरी बात है, फिर अगर आप फिर से console.a करोगे, अब मैं इसको अलर्ट ही करूँगा, अलर्ट करूँगा मैं a को, ठीक है, तो ये अब 45 देगा. पहले कंसोल में क्या देगा, कंसोल में यहाँ अनडिफाइंड देगा और यहाँ अलर्ट में क्या देगा 45. तो चूंकि इसने ऐसा किया कि मैंने ये जो किया है मैंने किया ही नहीं, मैंने ये बंद किया, लेकिन ये फिर भी ऐसा ही करेगा, ठीक है ना. फिर भी सेम थिंग सिचुएशन, अनडिफाइंड कंसोल में और अलर्ट में 45. ठीक हो गया. बस बजाय क्या किया इसने, जब आपने कहीं पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और आपने उस वेरिएबल डिक्लेयर करने से इनिशियलाइज भी किया था, उससे पहले ही आपने ए को जो है ना वो कर दिया, प्रिंट कर दिया, तो ये जो आपका है ये बिकॉज द ग्लोबल स्कोप ऑफ ए, ये इसको पहले डिक्लेयर करता है. ओके, इट सेज लाइक वेर ए, देन इट डज लाइक दिस. लेकिन अगर मैंने यही चीज़ लेट के साथ की होती, ठीक है, तो ये चीज़ लेट के साथ नहीं चलेगी. ये बोलेगा भाई तू बोल क्या रहा है, कैनॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन. ये बता रहा है, सीधे एरर है कि इनिशियलाइज करने से पहले आप ए को एक्सेस नहीं कर सकते. आप क्या एक्सेस कर रहे हो, आपने ए एक्सेस किया अभी ना, कहीं आपने कहा ही नहीं है. अगर आपने ऊपर कहा होता, फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट लेट ए, अगर मैं खाली लेट ए करता, ठीक है, लेट ए, अब मैं ये बंद करूँगा क्योंकि ये 2 बार लेट करने नहीं देगा ना, रीडिक्लेयर मत ये करने की है. ओके, अब इसमें कोई इशू नहीं है, ये कहता है अनडिफाइंड है और यहाँ मैंने किया ही नहीं, तो फिर ये अनडिफाइंड ही है दोनों सूरतों में. लेकिन अगर आपने लेट ए किया हुआ है तो इस सूरत में जब आपने असाइनमेंट नहीं दी है तो ए का डेटा टाइप अनडिफाइंड है, तो अब इसका कोई इशू नहीं है यहाँ पे. अभी कंसोल.log ए करने देगा आपको, ठीक है ना. फिर उसके बाद आप ए में कुछ वैल्यू डालना चाहते हो 45. अब आप लेट नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लेट आपको रीडिक्लेयर करने नहीं देगा, बट यू कैन पुट अप द वैल्यूज ऑफ ए 45, सो इट डजंट हैव एनी इशूज़. सो ए में यहाँ पे 45 आएगा, यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा. ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, मैं फिर समझाऊं. हाँ जी, ये समझ आ गया. Yes, sir. Yes, sir. श्योर. ये आ गया ना समझ से, ठीक से. तो ये काफ़ी था, लेट और वैर की डिफरेंसेस हमने सीख ली. एक और चीज़ होता है कॉन्स्टेंट. एक और चीज़ क्या होता है, कॉन्स्ट. अगर मैं कहूँगा कॉन्स्ट ए, ओके, अब मैं कहूँगा इसको console.log ए, या मैं कहूँगा फॉर एग्जाम्पल, अब console.log करेंगे, console.log ए करूँगा, ठीक है. पहले ही स्क्विगली लाइन रेड दिखा रहा है, तो इसको पता है कि इसको परेशानी आ गई. इनिशियलाइजर मिसिंग, क्या बोल रहा है, क्योंकि आप जो है ना कॉन्स्टेंट वेरिएबल करते हो. कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि ये, अगर आपके पास होता है लेट ए फॉर एग्जांपल, या आपके पास होता है वैर ए, डजंट मैटर, क्योंकि ए वेरिएबल है, आप कहीं पर भी कुछ भी डाल सकते हो उसको बाद में, है ना. आपके पास लेट ए आपने किया, एक वेरिएबल खड़ा किया आपने, एक कप खड़ा किया, आप इसमें दूध डालोगे, कभी कहवा डालोगे, कभी चाय डालोगे, डजंट मैटर, इज अ वेरिएबल. द कप इज अ वेरिएबल विच इज इन माई हैंड. ओके, सिमिलरली इज अ वेरिएबल ए, चाहे आपने वैर से किया या लेट से किया, इट डजंट मैटर. फिर आप कहीं आगे चल के आप ए में कुछ डाल रहे हो 45 या कुछ, जो भी आपकी मर्जी है. लेकिन जब आप कॉन्स्ट कहते हो, कॉन्स्टेंट, उसका मतलब है कि आप एक कॉन्स्टेंट बना रहे हो, उसमें चलेगा नहीं, उसमें देना पड़ेगा वैल्यू उसी वक्त, ठीक है. 78 मैंने दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू दिया मैंने, जैसे हम देते हैं ना अक्सर फिजिक्स में, हम देते हैं जी, स्मॉल जी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये पता ही हमें, ये हम देते हैं कांस्टेंट है. अब जिधर जिधर आपको जी चाहिए होगा वहाँ आप इसको कर सकते हो इस्तेमाल. तो ये देगा 9.8, यहाँ पे दिया आराम से इसने. लेकिन अब अगर मैं जी में कहता हूँ कि भाई जी को अपडेट करो, ये नहीं मानेगा, क्योंकि जी इज़ ए कांस्टेंट, इट कांट चेंज, राइट. सो देयर विल बी एन असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल. क्या कर रहे हो, कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन कर रहे हो. ऐसा नहीं करते. क्यों, क्योंकि जो आपका ये जो कांस्टेंट वेरिएबल है, इट्स अ कांस्टेंट वेरिएबल, इसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते. ये गलत बात है, क्योंकि ये कांस्टेंट है. जैसे ना आपका पाई होता है अक्सर, पाई, पी आई, ओके, पाई कितना होता है, पाई
और याहूद नर्सरी पे पढ़ाए से 3.14 पाई थी कौन मुश्किल ओके सो 3.14 नहीं होता तो कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल जो आपका होगा वो इस तरीके से हम करेंगे व्हाट इज द टाइम सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड और आई शुड स्टॉप 10:34 ऑलरेडी ओके फिर अब हमारे पास इसके बाद हम इतना समझ में आ गया काफ़ी है अगर आपको ये समझ में आ गया Yes, sir. हाँ जी किसी को कोई क्वेश्चन है इसके बारे में यू गाइस कैन आस्क स्टॉप प्रेजेंटिंग इसमें आपको एक कॉपी चाहिए होगी यू नीड टू हैव वन कॉपी क्रिएट वन कॉपी ठीक है ना उसके बाद जो है आप कॉपी एक बनाओ जो मैं लिखता हूँ वो लिखो कॉपी के ऊपर ठीक है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू मेंटेन कॉपी क्योंकि वरना आप ना 15 डेज डाउन अ लेन और 1 मंथ डाउन अ लेन आपको पुराना वाला सारा ही भूल जाएगा तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू मेक कॉपी एंड मैं भी कोशिश करूँगा मैं अपने नोट्स वगैरह दूंगा बट यू शुड ऑल्सो मेंटेन अ कॉपी ठीक है एनी क्वेश्चंस और आई शुड वाइंड इट अप